والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر صدیق صدقتا یا رسول اللہ حبب من الدنیا ثلاث النظر الی وجہ رسول اللہ انفاق مالی علی رسول اللہ ان یکون بنتی تحت رسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے کچھ عرض و معروج سے قبل آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پیش کروں۔ عاشقوں کو دیکھیے کہ جن عاشقوں نے حضور کی چہرہ انور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ایک عاشق جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا، رسول اللہ پہ اپنا مال خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی عائشہ رسول اللہ کے نکاح میں آ جائے۔ ملاحظہ کیجئے ابو بکر نے جو دنیا میں سب سے پسند چیز، پہلی چیز جو پسند کیا کہ حضور آپ کے چہرے انور کو دیکھنا، یہ مجھے بہت پیاری پسندیدہ ہے۔ آخر اس چہرے انور میں کیا تھا کہ جس نے بھی دیکھا ہے اس کی دنیا بھی بدل گئی، آخرت بھی بدل گئی۔ مختصر میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت اکرمہ ہیں جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، اللہ کی کیا شان ہے۔ دیکھیے باپ کافر، بیٹا مومن۔ اکرمہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے اور رسول اللہ سے ہمیشہ دور دور رہا کرتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں محمد سے سامنا نہ ہو جائے، اور ان کا خیال تھا کہ جو محمد کو دیکھ لے یا جسے محمد دیکھ لے وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہتا، اس ڈر سے وہ ہمیشہ دور دور رہا کرتے تھے۔ ایک روز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا سامنا ہو گیا، حضور کی نظر پڑی، اس نے بھی حضور کو دیکھا، حضور کی نظر پڑی، مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اکرمہ آگ کے قابل نہیں، کیوں مسلمان میں تو شامل نہیں؟ اے اکرمہ میں نہیں چاہتا کہ اس اچھو شکل و صورت کے ساتھ تم جہنم کی آگ میں جلو، اے اکرمہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ جب میرے آقا اتنا کہتے ہیں اکرمہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھاگے بھاگے گھر آیا، مگر لاکھ کوشش کرتا ہے کہ وہ چہرہ انور نگاہوں کے سامنے نہ آئے، رہ رہ کر وہی صورت پاک سامنے آ رہی ہے۔ پاک کوشش کیا، لاکھ کوشش کیا کہ وہ چہرہ انور نگاہوں سے بھول جاؤں، مگر جب نہیں بھولتا ہے اکرمہ اپنے معبود اپنے بت کے سامنے جا کر گریہ وزاری کرنے لگا، میرے معبود میری مدد کرنا تاکہ مجھے اس کی یاد نہ آئے۔ تو اکرمہ نے دیکھا کہ اس کا بت بھی بولا کہ مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں، بھولنا چاہے اگر تو مجھ کو بھول، محمد تو خدا کا ہے رسول۔ اکرمہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا بت بھی حضور سرور کائنات کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ میں دریا میں چھلانگ لگاؤں، ڈوب کر مر جاؤں، مگر نے دریا کو مخاطب کیا، حاتب نے دریا کو مخاطب کیا، اے دریا اسے مت غرق کر، پڑ گئی ہے یار کی اس پہ نظر۔ جب اکرمہ کا یہ اعجاز، جب اکرمہ نے یہ اعجاز دیکھا تو اس کا دل کفر سے دھل گیا، اور یہ اعجاز دیکھ کر حضور سرور کائنات کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہی اکرمہ ارشاد
इरशाद फरमाते हैं वाक़ई चेहरा अनवर वो हुस्न रखता है कि जिस खुश नसीब ने देख लिया उसकी दुनिया भी बदल गई, आखिरत भी बदल गई। अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम व पेशवा थे, जब मेरे आका मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए तो वो भी देखने के लिए गए। जब मेरे आका को देखा तो अब्दुल्ला बिन सलाम पुकार उठे, इन्नहु वजहुन लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, ये चेहरा अनवर किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। नबी बरहक नबी है, नबी सच्चे नबी हैं, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। आपको मालूम होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने इमाम अहमद रजा, बुलबुले बागे मदीना याकूब उस्मानी जबलपुरी। हजरत वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो शाही खजाने के गंदूम भूखों में तकसीम कर रहे थे, अभी नए फसल को 3 महीने बाकी हैं कि खाने गंदूम खत्म हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि ये 3 महीने कैसे गुजरेंगे। सोच ही रहे थे कि जिब्राइल हाजिर होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर, रब का हुक्म है कि आप अपने चेहरे से निकाब हटाइए और जो भूखा आए उसे अपना चेहरा दिखा दीजिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जो भी भूखा आया अपने चेहरे से निकाब हटाया, उसको दिखाया, तो हंसी खुशी 3 महीने मुसलसल गुजर गए। लेकिन जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा 3 महीने के लिए शेर हुए, मगर जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है पूरी कायनात सुबह कयामत तक वो शेर हो गए। हज़रात मगर मैं रुक कर आपको एक बात बताता चलूं कि हुजूर की चेहरे अनवर में वो तासीर थी, जब मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों में वो तासीर थी। आपके ज़हन में एक सवाल उभरता होगा कि जब मुस्तफ़ा के निगाहों में वो जज्बात थी, मुस्तफ़ा के निगाहों में वो तासीर थी, तो क्या अबू जहल पे नहीं पड़ी थी? क्या अबू लहब पे नहीं पड़ी थी? क्या मुस्तफ़ा की नजर उतबा और शाइबा पे नहीं पड़ी थी? यही मुस्तफ़ा की नजर अबू बकर पे पड़ी तो सदाकत का पैकर बन गए, उमर पे पड़ी अदालत का मकसद बन गए, उस्मान गनी पे पड़ी तो सखावत के दाता बन गए, अली पे पड़ी तो शुजाअत बहादुरी का शेर खुदा बन गए। एक निगाह नाज पड़ती गई, कायनात बदलती गई। एक निगाह नाज पड़ रही है, कोई अबू बकर सिद्दीक नजर आता है, कोई उमर नजर आता है, कोई उस्मान अली नजर आता है। एक निगाह उठ रही है, कोई अबू जहल नजर आ रहा है, कोई अबू लहब नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता चलूं कि इस सरजमी पर इतनी बारिश हो जाए कि नाले नदियां भर जाए, मगर एक शख्स खड़ा होता है, आप क्या बात कर रहे हैं? इतनी बारिश नहीं हुई कि नाले नदियां भर गए। अगर ऐसी बात है, मेरे घर के आंगन में एक बर्तन पड़ा हुआ है, उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं, पानी का एक कतरा भी नहीं। लोगों ने कहा चलो चलकर देख लिया जाए। जब करीब जाता है तो देखता है बर्तन सीधा नहीं उल्टा पड़ा हुआ है। नौजवानों ने कहा अरे नादान, कहने से पहले अपना बर्तन तो देख लिया होता। तेरा बर्तन सीधा नहीं उल्टा है और कयामत तक बारिश होती रहेगी, मगर इसमें पानी का एक बूंद बेबस नहीं हो सकता। मगर जब रहमत और नूर की बारिश हो रही थी, अबू बकर सिद्दीक के दिल का बर्तन खुला था, रहमत की बारिश का एक कतरा पड़ा तो सदाकत का पैकर बन गए, उमर पे पड़ी तो अदालत का मकसद बन गए, उस्मान पे पड़ी तो सखावत के दाता बन गए, अली पे पड़ी शुजाअत बहादुरी का शेर खुदा बन गए। हज़रात निगाह करम वैसे ही पड़ी जिसने जैसा देखा है। अबू बकर ने मेरे रसूल को देखा, रिसालत की मंजिल में देखा, उमर ने देखा, रिसालत की मंजिल में देखा, मगर जब अबू जहल ने मेरे रसूल को देखा तो एक बशर होने की हैसियत से देखा। अबू लहब ने मेरे रसूल को देखा तो इब्ने अब्दुल्ला होने की हैसियत से देखा। लिहाजा निगाह करम वैसे ही पड़ी जिसने जैसा देखा है। मगर आओ नबी की बारगाह में सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं, आने वाला अबू जहल आता है, कहता है मोहम्मद मैं तुझ जैसा बदसूरत इंसान इस दुनिया में मैं नहीं देखा।
मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सदकता अबू जहल, तूने सच कहा। अबू बकर के सब्र का पैमाना छलक उठे, वो भी खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके जैसा मैंने खूबसूरत हुस्न जमील आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सदकता अबू बकर, तूने सच कहा। सहाबा ताज्जुब में पड़ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, बात समझ में नहीं आ रही है। या रसूल अल्लाह, अबू जहल ने जब कहा बदसूरत, आपने कहा सच फरमाया, सच कहा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा खूबसूरत, कहा सच फरमाया। या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों बातें सच कैसे हो गए? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सहाबियों, परेशान होने की जरूरत नहीं। परवरदिगार आलम ने मुझे इस धरती पर आईना बनाकर भेजा है, और याद रखो आईना का काम होता है जो जैसे ही सूरत लेकर आएगा आईना में उसको वैसे ही नजर आएगा। देखने वाले का कसूर है, दिखाने वाले का कोई कसूर नहीं, वरना देखने वाला इस धरती पर बैठकर अर्श आज़म को देखा करते हैं। मगर शर्त यह है कि मोहब्बत और किरदार चाहिए, इश्क और उल्फत चाहिए। हज़रात, मुख्तसर से वक्त में मैं क्या बयान करूं। अबू बकर फरमाते हैं दुनिया की 3 चीजें पसंद है, रसूलुल्लाह का चेहरा देखना, रसूलुल्लाह पे अपना माल खर्च करना, और ये कि मेरी बेटी आयशा रसूलुल्लाह की निगाह में आ जाए। वही अबू बकर है जो हुजूर की चेहरे अनवर की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो गारे शोर में जो अबू बकर ने जो सब बिल चादर फाड़ फाड़ कर बंद कर दिए, मगर एक सुराग बाकी रह गया था। अपने एड़ियां रखकर हुजूर से फरमाया कि आप आराम फरमाइए, मगर सांप ने डसा। क्यों? वो सांप जानता था कि यहाँ हुजूर आएंगे, उसका दीदार करेंगे। वाकई हुजूर की चेहरे अनवर का वो एजाज था कि अकरमा फरमाते हैं वाकई जिसने भी हुजूर की चेहरे अनवर की जियारत कर ली उसकी दुनिया भी बदल गई, आखिरत भी बदल गया। अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे कदीर हम तमाम मुसलमानों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। खूब की